کے اصلی ابدی جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام خدا میں لکھا ہے خداوند میں، آواز بڑی تھوڑی ہے، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج سال کا دوسرا اتوار، جو سال گزر چکا ہے، ہم نے بے شمار منصوبے، پلان، التجائے، درخواستیں، مناجاتیں، مرادیں خدا کی جناب میں، خدا کی حضوری میں، خدا کے حضور پیش کی، خدا سے مانگی، ہر دن دعائیں کرتے رہے، مگر ان کا جواب نہیں آیا۔ جو گزرے سال ہم نے خدا سے مانگے، جو کچھ مانگا نہیں ملا، اس کا مطلب کہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے کہ شاید ہم خدا میں اس لیول پر مسرور نہیں ہیں، ہم خدا میں اس لیول پر زندگی کو بسر نہیں کر رہے، ہم خدا کی اقدس کے اندر نہیں ہیں، اس کی پناہ کے اندر نہیں ہیں، اس کی معموری کے اندر نہیں ہیں، اس کی حضوری کے اندر نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ منسلک نہیں رکھتے، اس لیے ہماری مرادیں پوری نہیں ہو رہی۔ جو یہ الفاظ کہہ رہے کہ خداوند میں مسرور ہے، تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، یہ الفاظ ہیں مقدس داؤد کے۔ کس کے الفاظ ہیں جی؟ کس کے الفاظ ہیں؟ داؤد کہتے ہیں خداوند میں مسرور ہے۔ اگر تو اپنے دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو خداوند خدا میں مسرور ہو جا۔ مگر داؤد یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی سنے سنائے نہیں کہہ رہا، یا اس نے اپنے بزرگوں سے، کاہنوں سے سنے اور اس ایمان کی تقویت میں، اس ایمان کی راستی میں، اس ایمان کے تقدس میں صادر فرما رہے نہیں، بلکہ اس کا اپنا تجربہ، اپنی زندگی کا تجربہ ہے، اس کا تجربہ ہے۔ آپ مقدس داؤد کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس نے کبھی مراد یا منت یا التجا یا آرزو یا خواہش نہیں کی کہ خداوند تو مجھے بادشاہ بنا، مگر اس نے ایک کام کیا۔ آپ اس کے لڑکپن سے، بچپن سے پڑھ کے دیکھ لیجئے، سیموئیل کا اس کے پاس آنے تک پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ سارا فاصلہ وہ اپنے خدا میں مسرور ہے، وہ اپنے خدا کے لیے زندگی بسر کر رہے، وہ اپنے خدا میں زندگی بسر کر رہے، وہ اپنے ہاتھوں کو خدا کے لیے استعمال کر رہے، اپنے لبوں کو خدا کی حمد کے لیے استعمال کر رہے، وہ جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، پہاڑوں پر اپنے خدا کو کبھی جدا نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے قول کے خدا سے جڑا رہتا ہے، ملا رہتا ہے، اس میں مسرور رہتا ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا اس نے آرزو نہیں کی خدا تو مجھے بادشاہ بنا، اس نے آرزو نہیں کی، بلکہ خدا نے خود اس کو چن لیا۔ سیموئیل سے کہا جا داؤد کو میرے نام سے مخصوص کر، اسرائیل کا اگلا بادشاہ داؤد ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کئی بار ہماری جو وفاداری ہے،
खुदा की जनाब में जो हम रास्ते से चलते हैं, सदाकत से चल रहे हैं, उसमें मसरूर रहते हैं, अपने लबों से, अपनी आंखों से, अपने जहन के ख्यालात से, दिल के अरमान से खुदा में रहते हैं, तो खुदा उसका अजर अपने आसमान के दरीचे खोल कर देता है। हमारी सोच भी वहां तक नहीं होती, हमारी अकल भी वहां तक नहीं होती। दाऊद की सोच भी नहीं थी कि वो बादशाह बनेगा, उसने सोचा भी ना था, मगर वो खुदा जो अंबिया का खुदा है, वो खुदा जो दाऊद के बुजुर्गों का खुदा है, चाहे बुजुर्ग अब्राहम जिसको कौमों का बाप कहा गया, चाहे बुजुर्ग इसहाक, चाहे बुजुर्ग याकूब जिससे 12 कबीले निकले। मेरे अजीजों, ये है खुदा में मसरूर रहना। अब हम इंसान, असी कई दफा अपनी बरकत आप ही गवा देने हैं। होता ये है, हम खुदा में चल रहे होते हैं बड़ी अच्छी डायरेक्शन पे, तो बरकत खराब कहां पे होती है। हम आंडियां गुआंडियां नूं असी गल्लां करनियां शुरू कर देने, हम लोगों को बातें करनी शुरू कर देते हैं। वो जो हमारे पास बरकत होती है हम उसको घुमाना शुरू कर देते हैं, लोगों पे तनकीद करना, उनकी बाबत गंदी बातें करना, गलत बातें करना, गलीस बातें करना, अपनी जुबान को गंदा कर लेते हैं। मैं अक्सर कहता हूं ये जुबान खुदा ने अपनी हिम्मत के लिए दी है, ये जुबान खुदा ने अपनी तारीफ के लिए दी है, ये जुबान खुदा ने कलाम को पढ़ने के लिए दी है, ये जुबान खुदा ने दुआ खुदा के हुजूर मांगने के लिए दी है, गलत बातें करने के लिए नहीं, झूठे प्रोपोगंडे बनाने के लिए नहीं, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं दी। हम असी अपनियां मुरादां की लैनियां ने, असी दूजियां दियां मुरादां ही वेख वेख के सड़ रहे होने हैं। अगर देखें खुदा के साथ हर एक का अपना अपना तल्लक है। खुदा कलाम में लिखे खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, उसका सूरज नेकों पर भी चमकता है, बदों पर भी चमकता है। अब सवाल यह है, साल गुजर चुके हैं, एक साल नहीं गुजरा, हमारी जिंदगी के उतने साल गुजर चुके हैं जितने साल के हम आज हो चुके हैं। एक साल नहीं गुजरा, बहुत सारे साल। अब 20 साल के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, गुजर चुके हैं। मगर आज मैं अक्सर कहता हूं, अपने तो वड्डी अदालत बंदा अपने आप की सारा वड्डी अदालत कर सकता है। हम लोगों की करने चले, अपनी आप हम देख सकते हैं खुदा के साथ मेरा तल्लुक कैसा है, मैं कहां पर खड़ा हूं, कहीं रियाकारों की मानत तो नहीं हूं। मत्ती की अंजील में रियाकारों की बाबत मिलता है कि चौकों में वो ऊंची ऊंची दुआएं करना पसंद करते हैं कि लोग मुझे रूहानी जाने, लोग जाने कि मैं खुदा परस्त हूं। कहीं हम रियाकारी के अंदर तो नहीं आ गए, हम रूपिये तो नहीं बन गए, कहीं हम जोकर तो नहीं बन चुके कि एक टाइम पे एक सूरत, दूसरे टाइम पे दूसरी, तीसरे टाइम पे तीसरी, अपने आप को वक्त के साथ तब्दील करना, बदलना, मगर खुदा में मसरूर ना रहना। मेरे असीसों, बरकत खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है वो देता है। अब बरकत मिलनी कैसे है? बरकत मिलनी है, मुरादें मिलनी है, दुर्खास्तें मिलनी है, दुआओं का जवाब मिलने, खुदा में मसरूर रहकर। अब खुदा में मसरूर रहने का मतलब
सर से लेके पांव तक खुदा में रहना है। दाऊद की बाबत पढ़ के देख लो, जो ये कह रहा है वो सर से लेके पांव तक अपने खुदा का है, वो खुदा में मसरूर रहता है, खुदा के लिए जिंदगी बसर कर रहा है, खुदा की पनाह के अंदर है, खुदा की मौजूदगी के अंदर है, उसकी हजूरी के अंदर है। वो अपने खाल के खुदा से जुदा नहीं होता। इसलिए तो वो कहता है, फख्र करता है, अपने खुदा पर फख्र करता है, कहता है बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे वो जानता है कि मैं खुदा में मसरूर हूं। उसने ये ईमान से नहीं कहा, बल्कि उसने साथी जिंदगी के तजुर्बे से कहा। उसने खुदा को अपने साथ साथ पाया, खुदा को अपने आगे भी देखा, पीछे भी देखा, दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, क्योंकि वो खुदा में मसरूर है। खुदा कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। दाऊद ही कहता है, खुदामंद मेरा जुबान है तो मुझे किसी चीज की क्या ना होगी जी, क्या ना होगी। अब वो कहता है मसरूर खुदा में रहना, और वो कहता है रहनुमा भी खुदा होना चाहिए, इब्लीस रहनुमा नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर आ गए हैं। हम समझते हैं 24 घंटों में 2 घंटे इब्लीस के लिए भी बतर कर लिए ते खैर सला भी, और जेडे बाकी 22 घंटे ने उन्होंने वसीले नाल बच जाएंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। हम अपने आप को धोखे में लेकर चल रहे हैं। अगर 24 घंटे के अंदर 10 मिनट भी इब्लीस के लिए जाएंगे, इब्लीस के लिए इस्तेमाल होंगे, तो फिर खुदा की मौजूदगी से निकल जाएंगे। अब जब से दुनिया का आगाज हुआ है, पैदाइश की किताब से पढ़ना शुरू कीजिए, मलाकी तक आ जाइए और पढ़ के देख लें। 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो खुदा में मसरूर है, दूसरे वो जो खुदा में मसरूर नहीं है। आप मूसा को देख लीजिए, 10 कमांडमेंट 10 काम लेने के लिए पहाड़ पर गया, वापस आया तो आकर उसने सबसे पहला काम किया, देखा लोग तो बुत परस्ती कर रहे हैं, खुदा के ईमान के तकद्दस से निकल चुके हैं। उसने कहा जो खुदा के हैं वो मेरी तरफ आ जाएं, जो खुदा के हैं वो मेरी तरफ आ जाए। इसलिए मेरे असीसों, जो खुदा के हैं उनको अलग किया जाएगा। जो खुदा के हैं वो खुदा के हैं, जो खुदा में मसरूर हैं उनकी मुरादें पूरी होंगी। मगर जो खुदा में नहीं है, खुदा के लिए जिंदगी नहीं बसर करते, खुदा में जिंदगी नहीं बसर करते, उनको पढ़ के देखें आप पुराने अहदनामा के अंदर, उनका नामो निशान ही नहीं मिलता। वो सफाए हस्ती से मिट गए। चाहे नूह का ज़माना उठा कर देख लीजिए, जो खुदा में मसरूर है वो बचाए गए, चाहे नूह और उसका खानदान है। और भी बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। इसलिए आप चाहते हैं इस साल आपकी मुरादें पूरी हो, आप चाहते हैं ये साल आपके लिए बरकतों का हो, आप चाहते हैं इस साल के अंदर वो सारी दुआओं का जवाब मिले जो आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे सालों से कर रहे हैं। तो एक रास्ता, एक कुंजी, एक दरवाजा ऐसा है जो आप अपने हाथों से खोल सकते हैं, और वो ये है कि खुदावन में मसरूर रहना शुरू कर दीजिए, खुदा में जिंदगी बसर करनी शुरू कर दीजिए। आज वो ये रहा, होता ये है, मैं लोगों के सामने तो खुदा का ते कार दे अंदर इब्लीस दा।
हमें जो मसरूर रहने की जरूरत है, खुदा में रहने के, अपने घर की चार दीवारी के अंदर हमको खुदा की हसूरी चाहिए, खुदा के पाकरू की ममूरी चाहिए, हमको खुदा के बेटे की मौजूदगी चाहिए। जब हम मसरूर रहेंगे अपने घराने के साथ, तो देखें एक दुआ का जवाब, एक बरकत आएगी जब 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग मिलकर खुदा में मसरूर रहेंगे, मिलकर पूरा घराना मसरूर रहेगा। फिर मेरे खुदा का वादा है कि वो आसमान के दरीचे खोल देता है और खोल कर वो सारी बरकतें जारी करता है जो आप सालों से मांग रहे होते हैं, जिनका आपने सोचा भी नहीं होता, जो आपके जहन में भी नहीं होती, वो सारी बरकत आपको मुहैया कर देता है। आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने जिंदगी खुदा में बसर करनी है। हमने जिंदगी, अगर हम यही सोचते रहे कि इब्लीस भी ते इस्तेमाल करता है, अगर हम ये सोचते रहे बातों बातों में खता करते हैं, अगर हम ये सोचते रहे इंसान तो गलती का पुतला है, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर इब्लीस हमें नेगेटिव सोच की तरफ लेकर जाता है, इब्लीस हमें खुदा से जुदाई की तरफ लेकर जाता है, इब्लीस हमें खुदा की कुर्बत से निकालना चाहता है, इब्लीस चाहता है हम वो सारी बरकतें ना लें, वो नेमतें ना लें, वो तोड़े ना लें जो खुदा हमें देना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने घर के अंदर खुदा में मसरूर हो जाएं। 24 घंटों के अंदर जहां पर आप मौजूद हैं, बसार के अंदर हैं, गली के अंदर हैं, किसी भी जगह पर हैं, अपने खुदा से कभी जुदा ना हो, अपने खुदा की नुमाइंदगी को कभी ना छोड़ें। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको आज भी बहुत सारी बरकतों से ममूर करना चाहता है, वो आपके दिल के अरमानों को पूरा करना चाहता है, आपके जहनों के ख्यालात को पूरा करना चाहता है। वो आज चाहता है कि आप पहले जैसे ना रहें, आप गुर्बत से निकल जाएं, तंगी से निकल जाएं, मुसीबतों से निकल जाएं, बीमारियों से निकल जाएं। वो चाहता है जमीन पर आप उसके बेटे और बेटियां बनकर रहे। तो बेटे और बेटियां उसके बेटे यीशु के बगैर नहीं बन सकते, इसलिए अपने आप को खुदा में मसरूर करें और उसके बेटे पर ईमान ले आए हैं। उसके बेटे को अपने दिल में जगह दे दीजिए, जहन के ख्यालात में जगह दे दीजिए, अपने घर के अंदर जगह दे दीजिए। वो आज भी कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूं जी, क्या करता हूं। ते असी दे खोल दे ही नहीं, कहने जरा फिल्म अंदरों मौकी लगे, हम तो खोल ही नहीं रहे। कई बार जिन्हें तोबा नहीं ना की उन्होंने कही तोबा कर लो, आखेंगे पारी साहब 2 महीने खलो जाओ, 3 महीने खलो जाओ, उन्नी देर भावें फरिश्ते आके कब्जा कर लें। इसलिए जिंदगी थोड़ी है, दरवाजा अपने दिल का खोल दें, जिंदगी का खोल दें। ये साल खुदा आपको प्रमोट करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता आप एक जगह पे स्टिल रहे, गुर्बत के अंदर है वहां पे रहे, गरीबी के अंदर है वहां पे रहे, मुसीबत के अंदर है वहां पे रहे, बीमारी के अंदर ना रहे। खुदा चाहता है आप अपलिफ्ट हो, आपकी प्रमोशन हो। खुदा आपको जमीन पर बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको जमीन पर सरफराज करना चाहता है। खुदा चाहता है जो आपको बातें करते हैं, चाहे कोई शरीक है, चाहे जो कोई मर्जी है, खुदा चाहता है वो शर्मिंदा हो। तो वो एक ही सूरत में शर्मिंदा होंगे जब आप खुदा के वफादार रहेंगे, जब आप खुदा के वफादार रहेंगे। इसलिए आपकी दुआएं बहुत अहमियत रखती हैं, आपकी जिंदगी का एक एक पल बहुत अहमियत रखता है, आपकी जिंदगी का गुजरा हुआ एक एक दिन बहुत अहमियत रखता है। जो बेटा और बेटी होते हैं, वो आप मुझे ये बताएं,
आप अपने माँ बाप के बेटे और बेटियां वो एक घंटे लिए उन्होंने ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂ 2 घंटे ਲਈ, 1 दिन ਲਈ, 1 महीने ਲਈ। आप तो अपने माँ बाप के बेटे और बेटियां जमीन पर जितनी देर जिंदगी है, इसका मतलब है असी खुदा दे बेटे ते बेटियां 1-2 घंटे ਲਈ नहीं है। जितनी देर जिंदगी है हम खुदा के बेटे और बेटियां जमीन पर है, उसकी नुमाइंदगी कीजिए, उसमें जिंदगी बसर कीजिए, ताकि सारी बरकत आपको वो आसमान के दरीचे खोल कर दे। कई बार मैंने कहा दाऊद ने मांगा भी नहीं, खुदा ने दे दिया। बहुत सारी बरकत है, आप मांग भी नहीं रहे, खुदा आपको देना चाहता है। वफादारी के बगैर सरफराजी नहीं है। खुदा में वफादार हो जाएं, खुदा के लिए वफादार हो जाएं, खुदा में मसरूर हो जाएं, ताकि सारे आपके दिल की मुरादों को वो पूरा करे, आसमान के दरीचे खोल कर अपनी बरकत आप पर जारी फरमाए।